A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about Julius Caesar, the characters as well as the summary of Julius Caesar. Okay, starting with the characters. So first we'll have a very brief review कि इसमें कौन कौन लोग हैं. Then we'll start with कि कौन क्या है किसका क्या रोल है. तो first is here Caesar. ठीक है, he has a main role to play. After that is there is a ghost of Caesar जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो. Then you can see Brutus, who is said to be the noble friend of Caesar but actually is not. And then is Cassius. Cassius is again a Roman general, but he is someone who also kills, who is the main conspirator behind killing Caesar. Then is Mark Antony, a true friend of Caesar. Octavius is there, plebeians are there. Plebeians are the people who are the normal common citizens of Rome. Then there's a soothsayer who tells about future. There's Portia, Brutus's wife. Then there's Calpurnia. She is Caesar's wife. Then there's Artemidorus, Lepidus, Cinna the poet, and Lucius. ओके, तो दीज आर द कैरेक्टर्स. अभी हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विद जूलियस सीजर. जूलियस सीजर इज अ पावरफुल जनरल एंड द लीडर ऑफ रोम. देन इज हिज वाइफ. यू नीड टू रिमेम्बर द नेम्स. और यहाँ पर अगर दो चीजों में से एक चीज को कैपिटल लिखा हुआ है तो दिस इज बिकॉज इन द होल प्ले वी नो दिस पर्सन एज सीजर ओनली, जिसको हम लोग हर जगह बार बार जूलियस सीजर नहीं कहेंगे. वी ओनली call him as Caesar. Then is Calpurnia, his wife. Then is Marcus Brutus. ये Roman senator भी हैं, a person who works under the government and who joins the conspiracy to assassinate Caesar. Assassinate means to kill Caesar. तो ये लोग, बहुत सारे लोग मिलकर के एक षड्यंत्र रचते हैं, conspiracy करते हैं, और that is to kill Caesar. Then Portia is his wife. Then is Lucius, their young servant, उनका young servant है. Then comes the conspirators. Conspirators are the people who are involved in the plot to kill Caesar. Okay. Then is Caius Cassius. Cassius सबसे पहले Casca, Cinna, Decius, Metellus, Cimber and Trebonius. Then comes Mark Antony. ये कौन है? ये एक politician and also a friend of Caesar, and he is a true friend of Caesar. Then is Octavius Caesar. He is the just because क्यों, अब देखो दोनों लोग यहाँ पर Caesar है तो इसीलिए इसका ये वाला नाम छोटा करके इसको इससे इस नाम से पूरे प्ले में जाना गया है, Octavius Caesar के नाम से. He is the grand nephew and as well as the adopted son of Caesar. Then comes Lepidus. He is a senator who briefly rules with Antony and Octavius after Caesar's death, briefly for a short time. Flavius, he is a Roman general. Marullus is also a Roman official. Then Publius, a Roman old Roman senator, and Populus Lena is also a Roman senator. Senator means ये लोग जो हैं ये गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं. Okay, then Cobbler, he is a witty shoe repairman. There is a soothsayer. Wit यहाँ पर उसकी खुद की बुद्धिमानी के लिए कहा गया है कि how with a nice sense of humor वो जवाब देता है. Soothsayer, a mysterious fortune teller, जो बताएगा कि सीजर को that he needs to be beware, उसको बच के रहना है, वो है soothsayer जो future telling करता है, भविष्यवाणी बताता है. Cinna, a poet, he is not same as Cinna the conspirator. Then is Pindarus, the servant to Cassius. Then is servant to Mark Antony, जिसका नेम नहीं बताया गया. Then are a few soldiers in the armies of Cassius and Brutus. There are Tritnus, Clitus, Voluminus and Strato. Okay, then comes the citizens of Rome, जहाँ पर including 6 with speaking parts, जिनके यहाँ पर speaking कुछ speeches दी हुई हैं. So we'll be starting here with the play summary. So it was 44 BC and today in the is the religious feast. दावत है वहां पर, since there is a festival going on, and here two tribunes Flavius और Marullus वहां पर आते हैं.
तो एक्शन बिगिंस वेयर, एक्शन बिगिंस इन 44 BC. जूलियस सीजर हैज री एंटर्ड रोम. वो वहां पर द मेन पर्सन जिसके ऊपर ये पूरा प्ले निर्धारित है, वो ही हैज जस्ट एंटर्ड रोम फ्रॉम आफ्टर बीइंग ट्रायम्फ, जीत करके. क्या जीत करके? अ विक्ट्री इन स्पेन. ओके, अ विक्ट्री इन स्पेन over the sons of his old enemy Pompey the Great. इनसे जीत करके a victory he has come back. There's a spontaneous celebration, वहां पर बहुत अच्छी सी celebration चल रही है, and that is interrupted and broken by Marullus and Flavius. ये दो political enemies है सीजर के, और वहीं पर एक बढ़िया सी celebration चल रही है जिसको वो लोग खराब कर देते हैं. It soon becomes apparent from their words and that powerful and secret forces are working against Caesar. और यहाँ पर उनकी बातों से, फ्लेवियस एंड मैरुलस की बातों से यहाँ पर पता चलता है when the scene starts कि सीजर के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही है. देयर आर पावरफुल फोर्सेस और आर्मीज, दे आर वर्किंग टू अटैक सीजर. ओके, उसके बाद वहां पर एक सूटसेयर आता है जो सीजर से कहता है, सीजर बी वेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च. आइड्स ऑफ मार्च होते हैं द 15th of March. ठीक है. सीजर इज शॉक्ड एंड डजंट नो व्हाट टू से, बट ही डज नॉट वरी मच अबाउट इट. ही अपीयर्स and attended by a train of friends and supporters and is warned by soothsayer, where he speaks that you need to be aware of the beware, बच करके रहना, alert रहना of the Ides of March, that is the 15th of March. He ignores the warning, और उस warning को वो ignore कर देता है, और उसके बाद he goes for the games and races, जो कि celebration of the feast of Lupercal, a festival वहां पर सेलिब्रेट होता है, उसी के लिए वो वहां पर चला जाता है. देन उसके बाद देन आफ्टर दैट देयर कम्स सीजर, सॉरी, कैसियस एंड ब्रूटस, और ये दोनों उसके खिलाफ प्लान करते हैं. आफ्टर सीजर्स डिपार्चर ओनली 2 men remain behind. They are Marcus Brutus, a close personal friend of Caesar, who is said to be a friend of Caesar, and Cassius, a long time political foe of Caesar, मतलब enemy. Both men are of aristocratic origin. वो बहुत ही ज्यादा highest ruling class के को belong करते हैं. ठीक है, मतलब दे आर वर्दी पीपल देयर, मतलब अच्छे क्लास को वो लोग बिलोंग करते हैं. एंड सी द एंड ऑफ देयर एंशियंट प्रिविलेज इन सीजर्स पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. क्योंकि वहां पर सीजर का ज्यादा रोल होता है, तो वहां पर सिंस उसको क्राउन भी दिया जाता है, बट वो उसको रिफ्यूज कर देता है. तो यहाँ पर बोला गया, इवन दो वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं, बट यहाँ पर दे फील लाइक कि उसकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के चक्कर में हम लोग का जो रूल है वो चला जाएगा. जस्ट बिकॉज की सीजर्स की पावर ऑफ प्रेस्टीज से ये लोग बहुत ज्यादा जल रहे होते हैं. व्हाट दे डू, दे प्लान फॉर मर्डर ऑफ जूलियस सीजर. कैसियस क्लेवरली प्रोब्स टू डिस्कवर कि ब्रूटस की जो सिंपथीज है वो कहाँ पर हैं. If he is a little bit of sympathetic towards Caesar, तो वो कहाँ पर lie करती हैं. और उसके बाद वो क्या करते हैं, first Brutus thinks कि whether he should kill Caesar or not, और then उसके बाद कुछ conspirators होते हैं जो Brutus को visit करते हैं, and finally he decides to join the conspiracy as a man of highest personal integrity. ब्रूटस पहले तो अपोज करता है सीजर के किलिंग को ऑन प्रिंसिपल, डिस्पाइट हिज फ्रेंड, मतलब ब्रूटस अपोजेस सीजर ऑन प्रिंसिपल. भले वो उसका दोस्त है, लेकिन उसको सीजर की कुछ चीजें जो नहीं अच्छी लगती हैं. कैसियस कॉशियसली इंक्वायर्स, और उसके बाद वो कैशियस, ही इज वेरी क्लेवर, वेरी कनिंग, उसको शो किया गया है. तो वो क्या करता है, वो ब्रूटस की फीलिंग्स के बारे में जानता है, और इफ अ कॉन्स्पिरेसी वर टू अनसीट सीजर, तो वो उसके बारे में जानते हैं कि अगर एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, हम लोग एक प्लॉट बिछाते हैं सीजर को मारने का, तो वहां पर
ब्रूटस की क्या फीलिंग्स होंगी? ही फाइंड्स कि ब्रूटस नॉट ऑल टुगेदर अगेंस्ट द नोशन, और उसको ये पता चलता है कैसियस को कि इस आइडिया के वो खिलाफ तो नहीं है। दैट इज ब्रूटस शेयर्स सम एम, कुछ तो कॉमन चीज है कैसियस और ब्रूटस में कि दोनों लोग कहीं ना कहीं सीजर को पसंद नहीं करते हैं। विथ कैसियस बट डज नॉट विश टू डू एनीथिंग एनी टू बी एनी फर्दर मूव्ड, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है जिससे मतलब समथिंग रॉन्ग हो, इलीगल वायलेंस समथिंग हो। तो टू मेन पार्ट, और उसके बाद चले जाते हैं, फर्दर डिस्कशन बाद में करते हैं कि मतलब बोलते हैं कि हम लोग फिर से मिलेंगे। फिर उसके बाद इट इज रिवील्ड कि दैट द कॉन्स्पिरेसी कैसियस spoke of in veiled terms is already a reality। ओके अब उसने क्या किया, मतलब वहां पर उसने बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स को गैदर कर दिया, मतलब वो चीज एक्चुअल में जो अभी तक सिर्फ बातें करते वो एक्चुअल में ही इज इम्प्लीमेंटिंग इट। He has gathered together a group of disgruntled and discredited aristocrats who are only too willing to assassinate Caesar। वो सिर्फ उन लोगों को उसने इकट्ठे किया था जो एक्चुअल में सीजर के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, partly to gain the support of respectable element of Roman society, क्योंकि वो बस ये चाहते थे कि मतलब ये कैसियस चाहता था कि जो रोमन सोसाइटी है उसका उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। कैसियस परसुएट करता है ब्रूटस को कि तुम कॉन्स्पिरेसी को हेड करो। ब्रूटस agrees to do so। Shortly afterward, plans are made at a secret meeting। ब्रूटस के ऑकर्ड में बहुत सारे मतलब प्लान्स बनाए जाते हैं वहां पे। The date is set, it will be on the day of the Ides of March, that is the 15th day of the month। यही इसी के लिए सूदसैर ने कहा था कि beware of the Ides of March, beware of March। तो वो 15 मार्च की डेट यहाँ पर निकाली गई थी। To kill Caesar, Caesar is to be murdered in the Senate chambers by the concealed daggers and swords of the assembled conspirators। conspirators ने जो अपना छुपा छुपा करके सब जगह पर डैगर्स और ये सब चीजें रखी हैं, तो वहीं पर ही उसको मारा जाएगा। आफ्टर द मीटिंग इज एंडेड, ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया जो है ही शी सस्पेक्ट्स कि कुछ तो गलत है, एंड शी इज फियरिंग हस्बैंड्स सेफ्टी क्वेश्चंस हिम। वो पूछती है उससे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट आर यू अप टू। तो टच्ड बाय हर लव एंड डिवोशन, ब्रूटस प्रॉमिस करता है तो कि वो उसको सब कुछ बाद में बता देगा। ओके देन कम्स अगेन द सीजर्स रोल, जहां पर सीजर इज इन द हाउस एंड अगले सुबह का टाइम है व्हेन द डेट एंड द फेटफुल आइड्स ऑफ मार्च। ऑब्वियसली दिस इज द डे ऑफ 15th ऑफ मार्च। प्रीसीडिंग एक रात पहले जो थी वो बहुत स्ट्रेंज थी, बहुत ज्यादा वाइल्ड स्टॉर्मी फुल ऑफ स्ट्रेंज एंड अनएक्सप्लेनेबल साइट्स एंड हैपनिंग्स were there throughout the city of Rome। बहुत अजीब सा गंदा सा मौसम था। There were many things that had happened in the city of Rome। Caesar की जो वाइफ है दैट्स कैल्पोनिया, she was terrified by the horrible nightmares persuade Caesar। उसने बहुत ही बुरे बुरे से सपने देखे थे, मतलब बहुत बुरे सपने देखे थे regarding Caesar being dead, कि उसके बॉडी में बहुत सारे होल्स एंड पीपल आर ड्रिंकिंग ब्लड फ्रॉम दोज होल्स। तो उसी से ही परसुएड होके सीजर से वो बोलती है कि तुम बाहर मत जाओ आज, कन्विंस्ड कि उसका जो ड्रीम्स है आर पोर्टेंट्स ऑफ डिजास्टर, कि वहां पर कुछ ना कुछ समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। और वो उससे कहती है कि जस्ट डोंट गो आउट। तो आफ्टर प्री अरेंजमेंट ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स जो होते हैं वो सीजर को लेने आ जाते हैं वहां पर, ठीक है, होपिंग टू डिफेंड कि कोई भी अगर वार्निंग है जो उसको वहां तक लाने से रोक रही है, तो टू फेंड ऑफ एनी पॉसिबल वार्निंग अंटिल दे हैव हिम टोटली इन पावर एट द सीनेट, की जब तक वो टोटली उसके पास सीनेट तक ना पहुंच जाए तब तक कुछ भी अगर ऐसा है तो वो उसको रोके नहीं वहां पर। Unaware that he is surrounded by assassins and shrugging off Calpurnia's exhortations, मतलब उसका जो persuasion था कैल्पुर्निया का, और उसको ये भी नहीं पता था कि जिन 7 लोगों के साथ वो जा रहा है वही उसके टू बी मर्डरर्स हैं, सीजर उनके साथ चला जाता है। Artemidorus is there, he found out about the plan of murder
और वो उसको एक लेटर लिखता है, उसको भेजता है, भले कॉन्स्पिरेटर्स के बेस्ट एफर्ट्स के बाद एक वार्निंग दे दी जाती है सीजर के हैंड में ऑन द वेरी स्टेप्स ऑफ द कैपिटल, बट ही रिफ्यूजेस, बट वो उसको पढ़ता ही नहीं है, वही बड़ी बड़ी पिक्चरों के जैसे जो दिखाया जाता है, वो पढ़ता ही नहीं है उसको। वेस्टिंग नो फर्दर टाइम, कॉन्स्पिरेटर्स मूव इनटू एक्शन, पर्पसली आस्किंग सीजर फॉर अ फेवर they know he will refuse, they move closer as if begging a favor, और उसके बाद then reaching and for their hidden weapons, और उसके बाद they kill him before the shocked eyes of the senators and spectators, और वो सबके सामने उनको मार देते हैं। okay, then after that हियरिंग ऑफ सीजर्स मर्डर, अब वहां पर थोड़ा बहुत तो क्योस हो ही जाता है। तो हियरिंग ऑफ सीजर्स मर्डर, मार्क एंटनी जो सीजर का क्लोजेस्ट फ्रेंड था, ही बेग्स परमिशन टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल, वो परमिशन मांगता है कि सीजर के फ्यूनरल पे मैं बोलूंगा, एंड ही इज अ वेरी गुड ओरेटर। ही ब्रूटस ग्रांट्स दिस परमिशन की ओवर द ऑब्जेक्शंस ऑफ कैसियस, कैसियस उसको मना करता है कि तुम ये काम मत करो। दिस इज वन ऑफ द ब्लंडर्स ऑफ ब्रूटस कि उसने मार्क एंटनी को परमिट कर दिया कि तुम उनके मतलब बोलो, तुम मार्क एंटनी को परमिट कर दिया कि ठीक है तुमको स्पीच देनी है तो तुम दो स्पीच, एंड डिलीवर्स। तो ब्रूटस क्या करता है, पहले खुद की स्पीच बोलता है, कॉन्फिडेंट कि उसके जो वर्ड्स हैं, वो जो इतनी भी पॉपुलेशन है भाई, पीपल विल आस्क ना कि आपने सीजर को क्यों मारा, तो उसको कन्विंस करने के लिए उसको ये पता था कि मैंने जो स्पीच दी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि सीजर की डेथ क्यों जरूरी है। ब्रूटस जब वहां से जाता है, एंटनी बिगिंस टू स्पीक। अब एंटनी ही इज एक्सेलेंट इन हिज ओरेटरी स्पीचेस, तो क्राउड जो है ब्रूटस के वर्ड्स से बहुत ज्यादा स्वेड था और वो मार्क एंटनी को सुनना भी नहीं चाहता था, बट उसने अपने जितने भी ओरेटोरिकल डिवाइस यूज कर सकता था वो की। एंटनी कंप्लीटली टर्न्ड द हाउलिंग मॉब screaming for the blood of Caesar's murderers. They were now shouting कि why was Caesar killed by those, और उसके बाद वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, of the conspirators जिन्होंने मारा था इनको। Alarmed by the furore, जैसे कि outbreak of anger that was caused by Antony's speech, कॉन्स्पिरेटर्स और सपोर्टर्स जो है दे आर फोर्स्ड, और जस्ट बिकॉज कि वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कॉन्स्पिरेटर्स कि भाई वी कैन नॉट हैंडल द मॉब, तो वो दे आर फोर्स्ड टू फाइनली लीव रोम एंड देन इटली, वो वहां से चले जाते हैं। आफ्टर दैट एट दिस पॉइंट देयर इज एंटनी टुगेदर विद सीजर्स यंग ग्रैंड नेफ्यू एंड अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस, और एक वेल्दी बैंकर था वहां पर, लेपिडस। दे गैदर एन आर्मी टू परस्यू एंड डिस्ट्रॉय सीजर्स किलर्स, वो लोग तय करते हैं कि हम सीजर का जो किलर है उसको मार देंगे। These three men, known as triumvirs, have formed a group that was called as Second Triumvirate to pursue the common goal of gaining control over the Roman Empire. और ये जो लोग थे उन्होंने finally ये decide किया that they will have a common goal of gaining control over the whole Roman Empire. काफी months pass होते हैं, after that during which जो conspirators हैं and their armies are pursued relentlessly into a far reaches of Asia Minor, मतलब ये जितने भी conspirators हैं वो वहां तक जाते हैं। When finally they decide to stop at the town of Sardis, Cassius and Brutus वहां पर quarrel करते हुए नजर आते हैं over finances, bid them to move away. Then in my tent Cassius enlarge your griefs, I will give you audience. ओके, तो यहाँ पर वो लोग सब फाइनेंसेस के ऊपर कुछ बात करते हैं। ब्रूटस is camped with his army when Cassius arrives with his army. Cassius begins to argue Brutus in front of the soldier. Brutus quickly asks him to calm.
in front of the troops, they head into the tent to hold a conference. फिर उनके जो differences होते हैं वो resolve हो जाते हैं and plans are made to meet the forces of Antony, Octavius and Lepidus in one battle. एक ही battle में हम लड़ाई करेंगे इन लोगों से. Okay, so they are discussing, then they finally form the army. Then, against his own better judgment, Cassius allows Brutus to overrule him. फिर से अब यहाँ पर कैसियस ने गलती, कैसियस कहता है ब्रूटस से कि फिर से तुम लीड करोगे. Instead of holding to their well prepared defensive positions, मतलब अपनी defensive positions hold करने के बजाय ब्रूटस ऑर्डर करता है कि तुम अटैक करो एंटनी के कैंप पर ऑन द प्लेन्स ऑफ फिलिपी. ओके, तो यहाँ पर they go, you can see the battle scene is there. Just before the battle, Brutus is visited by the ghost of Caesar. और वहीं पर ही what happens? He feels like, obviously he was afraid, so he is visited by the ghost of Caesar. Okay, I shall see thee at Philippi. और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें फिलिपी में बताऊंगा. The spirit warns him, but Brutus' courage is unshaken and he goes on. But Brutus का जो courage है वो डरता नहीं है, वो he goes on. The battle rages hotly. At first जो conspirators थे appear to have the advantage, but in the confusion Cassius is mistakenly convinced कि सब कुछ जो है वो डूब गया है और वो खुद को मार देता है. Leaderless, his forces are quickly defeated. अब क्योंकि वहां पर कोई लीडर नहीं था जो उनको गाइड करे, उसके जितने भी फोर्सेस हैं वो सब मारे जाते हैं. ब्रूटस फाइंड्स हिमसेल्फ फाइटिंग अ होपलेस बैटल. ब्रूटस को समझ में आता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं बचूंगा नहीं. अनेबल टू फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड शेम एज अ कैप्टिव, कि उसको बंदी बना लिया जाएगा अगर वो बच गया. who would be chained on the wheels of Antony's chariot and he will be dragged through the streets of Rome. He too takes his own life. He also dies because he was also afraid कि कुछ ऐसा हो सकता है. ओके, एंड देन जैसे कि प्ले जो है, मतलब फाइनली जो ब्रूटस के कॉन्स्पिरेटर्स से जब उनको मार दिया गया, सॉरी सीजर के कॉन्स्पिरेटर्स से उनको मार दिया गया, तो एंटनी delivers a eulogy over Brutus's body, calling him the noblest Roman of them all. Caesar's murder has been avenged. उसका जो बदला था वो ले लिया गया था. चीजें सही हो गई थी. Order has been restored and most importantly Roman Empire जो है अब वो सही हाथों में है. It has been preserved. Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. At least आपको एक briefing समझ में आ गई होगी कि this is how the whole play will work. But in case you are watching it till here, so I would like to say कि don't rely on only summaries when you are going for exams, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक outline दे देती हैं. The kind of questions the council makes for the students of ICSE and obviously ISC, तो जो ड्रामा का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है. तो just go have the line by line explanation of everything and then go for the question answers. Go practice it on your own. Okay, if you have liked the video, please share it with your friends as well. Do subscribe to my channel for the further videos and keep studying for your exam. Thank you.